Jai Hind students, today we will study about the kinds of noun. So noun, all of you know, noun means naming words, whatever the name of the things, place, person or an idea or an action, it is called noun. So noun are of five kinds. What are they? First is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, and fifth one is abstract noun. So what do you mean by proper noun? Proper noun is the name of a particular place or thing. It's called proper noun. Common noun is common name of a place, person or things. Collective noun it's a group of noun is considered as one. That is called collective noun. Example team. Material noun means the things which is made of. Examples jewelry is made of gold. So gold is what? Material noun. Abstract noun um, it's a feelings. Noun is the name of a feelings or any action. It's called abstract noun. In abstract noun, it's a quality of noun. Honesty, poverty, brotherhood, youngerhood, motherhood, friendship. This is are called abstract noun. It's a quality of noun. So we will read it separately. Proper noun it always starts with capital letter wherever it may be. कहीं पर भी रहे it starts with capital letter. Noun may be one word or may be more than one word, but it starts with capital letter when where it may be. कहीं पर भी रहे if it is in the starting then it's तो जरूरी है it's necessary that it is in capital letter. But if it is in the last of the sentences or middle of the sentences, wherever it starts with capital letter. Next is common noun. Common noun means common name. Common noun is the name given in common name to every person, place or things. Common name boy, girl, school, chair, duster, whatever you see around you. If you see around you, na, you will find common noun. Many of the noun are common noun. Next is more example of common noun are boy, girl, neighborhood, nation, city, etc. Pen, pencil, chalk, duster, whatever is common noun. Next is collective noun. Collective noun is the name of number of person, place or thing considered as one complete whole. Main thing is that it considered as one complete whole. Army, a group of soldiers is called army. Class, group of students are called class. Fleet, group of ships are called fleet. Group of thieves are called gang. Gang की जो थीव्स की जो ग्रुप होती है दैट इज कॉल्ड गैंग. अगर कैटल्स की ग्रुप है दैट इज कॉल्ड फ्लॉक ऑफ एनिमल्स. स्वाम ग्रुप ऑफ बीड्स आर कॉल्ड स्वाम. बंच इज यूज्ड फॉर द group of or number of flowers. Flock is also used for the number of birds. Next is material noun. A name given name a noun name given to any material used to make things. Example gold, silver, iron, wood, water, cement, wool, oil, yarn, etc. More example, the chair is made of wood. So here wood is a material noun and chair is a common noun. The sari is made of silk. So sari is a common noun and silk is a material noun. The jewelry is made of gold. So jewelry is a common noun and gold is a material noun. Sometimes this material noun is also used as a common noun. So it depends upon the sentences also. Next is abstract noun. Abstract noun is the name of some state, quality or feeling or an idea that we can only think or feel but can't touch or see. हम उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं और न ही हम उसको देख सकते हैं. Example beauty. We can feel the beauty only. We can feel the heat. We can feel the wisdom. We can feel the truth. But we cannot see it directly by our eyes or can't touch it. Example, heat we feel but can't see or touch. What we see or touch is hot object. Any hot object is there, then we can see or touch it. But we cannot see the heat. Students see these are more examples of collective noun.
So collective noun means all of you know a group of noun considered as one or whole, that is called collective noun. So a group of sailors grew a number of ships, car or buses. The one word is fleet. Generally this will come in one word question. ये आपके वन वर्ड में आ सकते हैं. A number of ships is called fleet. A collection of fish को क्या कहा जाता है? Shoal. So many fishes are there, then you can see shoal. You can say that shoal. A number of cows or wolves, that is called pack. A pack of wolves are roaming in the forest like this. A number of bees, इट्स वन वर्ड इज सॉन्ग. तो ये जनरली वन वर्ड में पूछा जाता है. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास. A collection of players, team are playing in the field like this. A collection of books, its one word is library. A collection of young animals की collection को क्या कहा जाता है? litter. A collection of stick, bundle. A collection of fruits trees है तो orchard. collection of tree है तो group. A collection of rooms, suite. A collection of soldiers, it's army. वैसे और देख सकते हो. कलेक्शन ऑफ एक्टर्स का हो जाएगा ट्रूप या कंपनी. कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है तो बोर्ड. कलेक्शन ऑफ एनजीज, होस्ट. कलेक्शन ऑफ फ्लैट्स है तो ब्लॉक. कलेक्शन ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स का फ्लाइट. कलेक्शन ऑफ रोवर्स का जाएगा गिल्ड. कलेक्शन ऑफ वेल्स और डॉल्फिन. देखो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फिश के लिए था शॉल और कलेक्शन ऑफ वेल्स या डॉल्फिन के लिए है स्कूल. सो स्कूल इज यूज. जो फिशेस होते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में हम लोग ये करते हैं, स्विम करते हैं या फ्लो करते हैं, तो उसके लिए फिर स्कूल का वर्ड यूज किया जाता है. ऐसे जनरली हम लोग शॉल का यूज करते हैं फिश के लिए. तो प्रीवियस में जो पढ़े थे वो दैट इज द कलेक्टिव नाउन, बट दीज आर द मोर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये जो एग्जांपल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. जनरली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या फिर कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, या कभी वर्ब से इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, तो कभी एडजेक्टिव से इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं. एग्जांपल अगर लेते हैं बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा? बॉयहुड. बॉय क्या चीज है? आपका कॉमन नाउन. ठीक है, बॉयहुड हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉय का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ बॉय? तो बॉयहुड हो जाएगा. वैसे ही ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव. तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी. ठीक है, वैसे ही एक्ट के लिए लेते हैं. एक्ट, इसका हो गया आपका एक्शन. ये कॉमन नाउन से बना आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बना हुआ है. तो इसमें आप देख सकते हैं एक्ट था एक्चुअल वर्ड्स, इसमें हम लोग क्या ऐड किए हैं? आई ओ एन ऐड किए, और उसको आई ओ एन ऐड करके हमने एक नया वर्ड बनाया जो कि एक नाउन बना, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक्शन जो है वी कैन फील इट बट वी कांट सी और टच. ऑनेस्टी जैसे देख रहे हो, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ वाई लगा करके इसको एक नया वर्ड में चेंज किया है, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वैसे ही बॉय इसमें हमने लगाया है फूड. एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्स. जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है इसको सफिक्स कहा जाता है. ये जनरली जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसके बाद लगाया जाता है. जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसके बाद जो है वो लगाया जाता है सफिक्स. अगर पहले लगाए तो प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स जो है हम ज्यादातर ऑपोजिट वर्ड्स के लिए या एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं. Some more suffix words are there. A C Y, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम A C Y ऐड करके उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. जैसे कि एक्यूरेट, तो उसका क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी. इंटीमेट, इंटीमेसी. इलिटरेट, इलिटरेसी. कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम A G E ऐड करते हैं और उसका हम
सफिक्स बनाते हैं, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, जैसे कि शॉर्ट है, ब्रेक है, वेस्ट है, वेट है। तो शॉर्ट का क्या हो जाएगा शॉर्टेज, ब्रेक का ब्रेकेज, वेस्ट का वेस्टेज, वेट का वेटेज, पास का पैसेज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसपे हम ए एल का यूज करके उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। एग्जांपल्स, renew, renewal. Now see the spelling, RENEW, only ALZ. Right, spelling is TRY, but here the spelling is little bit changed, that is TRIAL. यहाँ पर देखो arrive, arrival. Here no E is there, means E is removed. Bury, Y है, but here Y changing to I. यहाँ पर approve है, देखिए इसमें Y हटा हुआ है और approval है। ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे approve दे दिया जाए, approve, तो इसका कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, APPROVEAL कर दिया जाएगा, या APPROVEVAL। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए सेम टाइम, माने ऐसे लगेगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड्स को जो है वो कंफ्यूजिंग वर्ड में सिमिलर टाइप के वर्ड दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको विद स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अप्रूव? सो APPROVAL, अप्रूवल, माने आपको पूरी स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करना है, तभी जाकर के आप सही बना करके आएंगे वहां पर। नेक्स्ट है प्रपोज, प्रपोजल, विथड्रॉ, विथड्रॉअल, डिसमिस, डिसमिसल। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग ANCE का यूज करते हैं, जैसे रिलाय, रिलायंस। यहाँ पर देखिए जो भी अगर लास्ट अगर एंडिंग वर्ड वाई है तो उसको हम वाई में ही चेंज करते हैं, रिलाय, रिलायंस। ANC, डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस, नो चेंजेस, ओनली यू हैव टू ऐड ANC। अटेंड, अटेंडेंस, नो चेंजेस। इंश्योर, यहाँ पर चेंज है, देखिए ई चेंज इनटू ए। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, जब आप सफिक्स अगर याद करते हैं तो आपको ये चीज को ध्यान देना कि कौन सा लेटर जो है कौन सा लेटर में चेंज हो रहा है या रिमूव हो रहा है वो लेटर। यहाँ पर देखो ई, नो ई इज देयर, यहाँ पर ई नहीं है, RESEMBLANC। मतलब जो कंफ्यूजिंग दिख रहा है यही वर्ड जो है एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस, नो टी। मेंटेन, मेंटेनेंस, TAIN। यहाँ स्टार्ट देखिए TENANCE। अचीव, अचीवमेंट, ई नो चेंजेस। एंजॉय, एंजॉयमेंट। अपॉइंट, अपॉइंटमेंट। एनलार्ज, एनलार्ज, एनलार्जमेंट, नो चेंज। रिफ्रेश, रिफ्रेशमेंट, नो चेंज। ट्रीट, ट्रीटमेंट, नो चेंज। पनिश, पनिशमेंट, नो चेंज। इन्वॉल्व, इन्वॉल्वमेंट, नो चेंज। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथनेस। स्लो, स्लोनेस। सॉफ्ट, सॉफ्टनेस। ट्रूथ, ट्रूथफुलनेस। काइंड, काइंडनेस। क्विक, क्विकनेस। डम, डमनेस। चीप, चीपनेस। ऑली, ऑलीनेस। जहां पर भी वाई है चेंज इनटू आई, जहां पर भी आपको वाई दिखेगा वो आई में ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर वाई आई में चेंज हो गया, लेजी आई में चेंज हुआ, फाइन नो चेंजेस, ग्रेट नो चेंजेस, काम नो चेंजेस, चेरी नो चेंजेस। हुड है तो हुड में जनरली नो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए चाइल्ड, चाइल्डहुड। फॉल्स, फॉल्सहुड। प्रीस्ट, प्रीस्टहुड। नेवर, नेबरहुड। ब्रदर, ब्रदरहुड। मदर, मदरहुड। फादर, फादरहुड। एबल का देखते हैं एबिलिटी। एबल, एबिलिटी। देखिए यहाँ पर ABI, एबल की स्पेलिंग और एबिलिटी की स्पेलिंग पूरी तरीके से चेंज है। सिक्योर, सिक्योरिटी। स्कार्स, स्कार्सिटी। Here I change it to Y. Brief, brevity. Here EF, only F is changed into V. Familiar, familiarity. Humble, humility.
वर्ड इज टोटली चेंज। नेसेसरी, नेसेसिटी, यहाँ पर भी देखिए वर्ड पूरी तरीके से चेंज है। नोबल, नोबिलिटी, आई टी ई चेंज इनटू आई। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शिप का यूज करते हैं, जैसे फ्रेंड, फ्रेंडशिप, किन, किनशिप, हार्ड, हार्डशिप, एडमिट, एडमिशन, टोटली चेंज। एक्सपेल, एक्सप्लोजन, टोटली चेंज। डिसाइड, डिसीजन, टोटली चेंज। तो दीज आर मच मोर इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू ई ग्रामर। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसे कुछ यहाँ पर और भी वर्ड्स हैं जिसको आपको विथ स्पेलिंग लर्न करना है। थैंक यू।